علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ تعالی قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے محبوب ہم نے آپ کو تمام عالمین کے لیے رحمت بنایا ہے، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، صرف انسانوں کے لیے نہیں، صرف جانوروں کے لیے نہیں، بلکہ پوری کائنات کے لیے، جس میں چاند بھی ہے، سورج بھی ہے، فرشتے بھی ہے، الگ الگ خدا کی مخلوقات بھی ہے۔ کیا فرمایا؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے محبوب ہم نے آپ کو رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ کیا بنا کے بھیجا ہے؟ تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ خدا کی رحمت کا نام محمد ہے۔ کیا ہے؟ محمد ہے۔ خدا کی رحمت کا نام محمد ہے، اور اللہ نے خود نام محمد رکھا۔ کیا رکھا؟ محمد رکھا۔ محمد کے معنی ہوتے ہیں جس کی سب سے زیادہ رب نے تعریف کی ہو، جس کی سب سے زیادہ رب نے تعریف کی ہو۔ آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب ہے۔ کون ہے؟ محبوب ہے، اللہ کی رحمت ہے، اور رحمت جو خدا کی ہوتی ہے وہ مرتی نہیں ہے، کیونکہ اگر خدا کی رحمت مر جائے تو پھر رحمت کیسی؟ تو پھر وہ رحمت نہیں رہتی، کیونکہ اگر کہیں گے نہیں وہ تو مر گئی تو پھر خدا کی رحمت کیسی؟ تو خدا کی رحمت مرتی نہیں ہے، کہ وہ محبوب ہے، وہ کائنات جس کے صدقے میں اللہ رب العزت نے پوری کائنات کو خلق کیا، اور خدا نے کہا اے محبوب اگر تمہیں خلق کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں کائنات کو خلق نہیں کرتا۔ بے پناہ اللہ رب العزت اپنے محبوب سے محبت کرتا ہے۔ یہ سب کچھ جو خدا نے بنایا وہ صرف محمد کے لیے بنایا، وہ صرف محمد کے لیے بنایا۔ وہ عظیم محبوب، اس کے لیے، ان کے لیے کائنات کے ماں باپ جو چنے اللہ رب العزت نے، وہ بھی بہترین چنے، حضرت آمنہ اور حضرت عبداللہ۔ خدا نے اپنے نور سے نور محمد بنایا۔ کیا بنایا؟ اپنے نور سے نور محمد بنایا، اور اس نور کو بشریت کی صورت میں زمین پہ بھیجا۔ بشریت کی صورت میں زمین پر بھیجا۔ تو نبی نور ہے، لیکن زمین پر آئے تو بشر تھے، تو آپ نوری بشر ہے نور ہے، اس لیے آپ کا زمین پہ سایہ نہیں پڑتا تھا۔ اللہ کے نبی کا زمین پر سایہ نہیں پڑتا تھا۔ بڑے خوبصورت تھے، اتنے خوبصورت، کائنات میں آپ سے زیادہ کوئی حسین نہیں تھا۔ پوری کائنات میں آپ سے زیادہ کوئی حسین نہیں تھا، خوبصورت نہیں تھا، بے انتہا خوبصورت، بے انتہا حسین و جمیل۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ یوسف علیہ السلام کا واقعہ ہے، بی بی زلیخا کا، کہ بی بی زلیخا جو تھی وہ ہر وقت یوسف کرتی تھی، حسن یوسف میں پاگل ہو گئی تھی، دیوانگی طاری ہو گئی تھی، کہ یوسف کے سوا کچھ نظر نہ آتا۔ یوسف علیہ السلام، مصر کی وزیروں کی عورتوں نے پوچھا اے زلیخا بتا تو ہر وقت یوسف کیوں کرتی ہے؟ کہا تم دیکھنا چاہتی ہو؟ کہا کہ ٹھیک ہے، اب میں دسترخوان پہ جو ہے وہ ان کے ہاتھوں میں ایک سیب اور چھری دے دی، اور کہا کہ جیسے یوسف یہاں سے گزریں گے تم انہیں دیکھتے ہوئے یہ سیب کو کاٹنا۔ کیا کرنا؟ دیکھتے ہوئے سیب کو کاٹنا۔ مصر کی عورتیں، وہ عزیزان مصر کی عورتیں بیٹھ گئی، ہاتھوں میں سیب تھے، چھری تھی۔ یوسف علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ یہاں سے جائیے۔ چہرے پہ نقاب تھا، یوسف علیہ السلام نے نقاب ہٹایا، گزرے۔ مصر کی عورتیں دیکھتے ہوئے سیب کاٹنے لگی،
सेब कट गया, उंगलियां भी कट गई, मिस्र की औरतों को खबर ना हुई। तुम्हें कहा था ना, तुम हर वक्त यूसुफ यूसुफ क्यों करती हो। यूसुफ का हुस्न जमाल ये था कि मिस्र की औरतों ने अपनी उंगलियां काट दी, उनको पता नहीं चला। हजरत आयशा सिद्दीका फरमाती है वो यूसुफ थे, तो मिस्र की औरतों ने देखते हुए उंगलियां काट दी। अगर वो मोहम्मद मुस्तफा को देख लेती तो अपने कलेजे काट लेती। हुजूर इतने खूबसूरत थे। आप हजरत आयशा सिद्दीका फरमाती है हुजूर अंधेरे में कभी मुस्कुरा देते, आपके दांत मुबारक से, दंदाने मुबारक से वो रोशनी निकलती, वो चमक निकलती, वो नूर निकलता कि घर की दीवारें रोशन हो जाती थी। हजरत आयशा कहती है कि इतना नूर निकलता था कि मैं अंधेरे में सुई में धागा पिरो सकती थी। हुजूर की दांत से ऐसा नूर निकलता था। इतने खूबसूरत, ना ज्यादा ऊंचे थे, क्योंकि ज्यादा ऊंचा इंसान भी अच्छा नहीं लगता, अगर दराज कद का हो तो भी वो अच्छा नहीं लगता। कहा हुजूर को अल्लाह ने मियाना कद बनाया था। आंखों की जो पुतली थी ना वो काली थी, सिया थी, और आपकी जुल्फे मुबारक घुंघरियालो थी, घुंघर वाली थी, और आपके जिस्म मुबारक से ऐसी खुशबू निकलती थी कि सहाबा कहते हैं कि हमने ऐसी खुशबू अंबर में भी नहीं पाई, कस्तूरी में भी नहीं पाई, न किसी इतर में पाई। हुजूर के जिस्म मुबारक से वो खुशबू निकलती थी, हालांकि आप खुशबू नहीं लगाते थे, तब ऐसी खुशबू निकलती। सहाबा कहते हैं ना कि हम क्या करते थे, हुजूर का पसीना, और जो सहाबियात थी, जो खवातीन थी सहाबियात में, वो क्या करती थी, हुजूर का पसीना जो है ना वो बोतलों में भर लेती थी। हुजूर पूछते तुम इसका क्या करोगी, कहते हमारे बच्चों को लगाएंगी, दुल्हनों को लगाया जाएगा, हम खुद लगाएंगी। हुजूर के उस पसीने से मदीने की गलियां महक जाया करती। और अगर हुजूर किसी बच्चे के सर पे हाथ रख देते तो वो बच्चा इस बात से पहचाना जाता कि इसके सर पे मुस्तफा ने हाथ रखा है। वो कैसे पहचाना जाता, कई कई महीने और कई कई साल गुजर जाते, उसके सर से खुशबू नहीं जाती, उसके सर से खुशबू नहीं जाती थी। हुजूर इतने खूबसूरत थे। आपकी नाक मुबारक जो है ऊंची पतली थी, गंदमी रंग के थे, बड़ा अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इतना खूबसूरत बनाया था कि दांत मुबारक एक दूसरे से ना बारीक बारीक थी, बारीक बारीक जैसे थे, लेकिन ज्यादा चौड़े नहीं थे। इतने खूबसूरत दांत मुबारक थे, ऐसे लगते थे जैसे मोती हो, ऐसे लगते थे जैसे मोती हो, इतने खूबसूरत थे। हुजूर अगर खारे पानी के कुएं में थूक देते ना तो खारे पानी का कुआं मीठा हो जाया करता। हुजूर वजू फरमाते तो सहाबा हुजूर के गिर्द तवाफ करते थे, और हुजूर का किया हुआ पानी का कोई कतरा जमीन पे नहीं गिरने देते थे। इतनी मोहब्बत हुजूर से थी। कहते हजरत अली कहते कि हुजूर इतने खूबसूरत थे कि कोई आपसे को दूर से देख लेता, कोई दूर से देख लेता तो वो एकदम मखमूर हो जाता, बस देखता ही रह जाता। कोई करीब आता तो उसे आपसे इतनी मोहब्बत हो जाती थी कि वो आपके बिना नहीं रह सकता था। इतने हुजूर खूबसूरत थे। क्या थे? इतने हुजूर खूबसूरत थे। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम आलमीन के लिए क्या बना के भेजा था? रहमत बना के भेजा था। तो वो मुस्तफ़ा था। अगर कोई उन्हें पत्थर भी मारता, मक्का में कोई गाली भी देता तो वो दुआ दिया करते। मक्का में इतना सताया गया, तकलीफें दी गई, मक्का छोड़ने पे मजबूर किया गया, लेकिन वही नबी जब मक्का में आया फातेह बन के तो उसी दुश्मनों से कहा जाओ मैंने तुमको अल्लाह के वास्ते माफ कर दिया। क्या कहा? मैंने तुम्हें अल्लाह के वास्ते माफ कर दिया। और हुजूर देने पे आए तो इतना देते हैं कि जिसकी कोई हद नहीं है, जिसकी कोई हद नहीं है। हिंदुस्तान के एक सहाबी गुजरे हैं भटिंडा के, जिनका नाम है बाबा रतन। क्या नाम है? बाबा रतन हिंदी। भटिंडा में उनकी मजार है।
हुजूर की उम्मत के सबसे ज्यादा उम्र पाने वाले सहाबी, जिनकी उम्र 700 साल की है, हिंदुस्तानी सहाबी, कितनी है? 700 साल की उम्र पाई है आपने, बाबा रतन हिंदी ने। तो लोगों ने आपसे पूछा कि हजरत आपने इस्लाम कैसे कबूल किया? हिंदू थे, हरियाणा भटिंडा के रहने वाले थे, भटिंडा गांव के, गैर मुस्लिम थे। तो उनसे पूछा गया कि बाबा रतन आपने इस्लाम कैसे कबूल किया? अल्लाह के नबी के सहाबी है, सहाबी है, रसूल है, भटिंडा में आपका मज़ार है, हरियाणा में। तो उनसे पूछा गया कि आप बाबा रतन आपने इस्लाम कैसे कबूल किया? तो बाबा रतन कहते हैं कि हुजूर का बचपना था और मेरी जवानी थी। क्या था? हुजूर का बचपना था और मेरी जवानी थी। और बाबा रतन हिंदी जो कि ताजिरों तिजारत के लिए शाम जाया करते थे, कहा जाते थे शाम में तिजारत के लिए जाते थे, हिंदुस्तान से जो लोग जाते थे। अभी इनका जो रास्ता था गुजरने का शाम का, वो मक्का से होके गुजरता था, मक्का होके गुजरते थे वो। तो वो बाबा रतन कहते हैं कि हम मक्का से गुजर रहे थे और मक्का के करीब में एक वादी थी जहाँ कुछ हरियाली थी, सब्जा था, वहां पे मक्का के लोग बकरियां चराते थे। और कहते हैं कि जिस वक्त हम वहां से गुजरे, अभी नबूवत का ऐलान नहीं हुआ है, जिस वक्त हम उस मक्का की वादी से गुजरे तो बारिश हो रही थी और तमाम पहाड़ों से पानी बह रहा था। तो नदी और वहां पे नाले भी थे, नदी नाले जैसे नहरें थी, नाले हुआ करते हैं पानी के, वो थे। तो वो भर भर के बह रहे थे। और एक खूबसूरत बच्चा था। क्या था? इतना खूबसूरत बच्चा जैसे 14वीं का चांद। कहते हैं मैंने कायनात में इतना खूबसूरत बच्चा नहीं देखा, इतना खूबसूरत बच्चा। और वो बकरियां चरा रहा था। और कहते कि वो क्योंकि नदी और नाले जो थे वहां के भर के बह रहे थे, तेजी से बारिश हो रही थी, तो बकरियां जो है वो छलांग लगा के उस तरफ चली गई। अब ये इंतजार में खड़े थे, छोटे थे, कि ये छलांग लगा के उस तरफ नहीं जा सकते, तो ये किसी के शायद इंतजार में थे कि कोई आए और नाला पार करा दे। बाबा रतन कहते हैं कि मैं गया, और जाने के बाद में क्योंकि अरबी आती नहीं थी, हिंदी बोलते थे, तो इन्होंने हिंदी जबान में उनसे कहा कि नाला पार कराना, इशारों में। तो उन्होंने कहा कि सर हिला के कहा कि हाँ हमें नाला पार कराना है। मेरा इशारा समझ गए, कहा नाला पार करना है। तो बाबा रतन हिंदी कहते हैं कि मैंने उन्हें अपने कंधों पे उठाया और नाला पार करा दिया। सुभान अल्लाह। क्या किया? नाला पार करा दिया। तो उन्होंने अरबी में कुछ कहा। क्या कहा? अरबी में कुछ 7 मरतबा कहा। क्या कहते बाबा रतन हिंदी? अरबी में उन्होंने 7 मरतबा कुछ कहा। वो क्या था? कहा अल्लाह तेरी उम्र दराज करे, अल्लाह तेरी उम्र दराज करे, अल्लाह तेरी उम्र दराज करे, अल्लाह तेरी उम्र दराज। 7 मरतबा कहा। अब वो कहते हैं कि इसको कई अरसा बीत गया, एक जमाना बीत गया, और जमाना बीतने के बाद में फिर मैं हिंदुस्तान में था और हमारे गांव भटिंडा के जंगलों में बैठा हुआ था। तो मैंने देखा हम लोग सब उनके साथ ही जंगल में बैठे थे और खूबसूरत चांद नमूदार था आसमान पे, 14वीं का चांद था। वो कहते हम बैठे हुए थे, अचानक चांद 2 टुकड़े हो गया। बाबा रतन क्या कहते हैं? अचानक चांद 2 टुकड़े हो गया और कुछ देर के बाद में फिर मिल गया। अब परेशान हो गए, ये कैसे हुआ? कुछ दिनों के बाद में मक्का से ताजिर, अरबों के जो तिजारत की घर से उधर से आते थे, इधर ताजिर आया करते थे तिजारत के लिए, तो मक्का से लोग आए। तो बाबा रतन हिंदी ने पूछा कि तुम्हें कुछ मालूम है कि ये चांद टुकड़े कैसे हुआ था? उन्होंने देख लिया था वो वाकया। तो उन्होंने बताया हाँ, हमारे यहाँ मक्का में कुरैश का एक जवान है, उससे कहा गया कि चांद के 2 टुकड़े करो, वो बड़े बड़े मौजज़ात दिखाता है। काफिरों ने उससे कहा कि तुम चांद के 2 टुकड़े करके बताओ। उन्होंने इंशकुल कमर कहा, उंगली का इशारा किया, चांद 2 टुकड़े हो गया। सुभान अल्लाह। फिर चांद मिल गया। बाबा रतन हिंदी कहते हैं कि अब मुझे मिलने की बड़ी ख्वाहिश हुई और मैं फिर हिंदुस्तान से चला और मदीना पहुंचा। और मदीना पहुंचने के बाद में मैं मक्का गया तो वहाँ पता चला कि वो हिजरत करके मदीना चले गए। तो मैं मदीना गया। जब मदीने में गया तो लोगों से पूछा
کہ हुजूर कहाँ है, तो उन्होंने बताया मस्जिद नबी में बैठे हैं। मैं मस्जिद नबी में दाखिल हुआ तो बाबा रतन कहते हैं कि फिर वही 14वीं का चांद था जो अपने सहाबा की झुरमट में बैठा हुआ था। तो मैंने आके कहा कि या रसूल अल्लाह, मुझे भी कोई मौजज़ा दिखा दे कि मैं भी ईमान ले आऊँ। क्या करे? मुझे भी कोई मौजज़ा दिखा दे कि मैं भी ईमान ले आऊँ। तो हुजूर मुस्कुरा पड़े और मुस्कुरा के कहा, रतन हिंदी, क्या तुझे वो बचपन वाला मौजज़ा काफ़ी नहीं है? क्या तुझे वो, जब तूने हमें नाला पार कराया था, हमने कहा था अल्लाह तेरी उम्र दराज करे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हर एक बात की, हुजूर की एक दुआ के बदले तुझे 100 साल अता किए। हुजूर ने 7 मरतबा कहा तो अल्लाह ने 700 साल की उम्र दे दी बाबा रतन को। तो इस्लाम कबूल किया और फिर हिंदुस्तान आए। यही हिंदुस्तान में आपका मज़ार मुबारक है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए थे और सहाबा भी बैठे हुए थे। हुजूर ने पूछा सहाबा से, ऐ मेरे सहाबा, ये बताओ कि किसका ईमान अजीब तर है? क्या फरमाया? किसका ईमान अजीब तर है? तो सहाबा ने कहा कि या रसूल अल्लाह, फरिश्तों का ईमान अजीब तर है। क्या कहा? फरिश्तों का ईमान अजीब तर है। रसूलुल्लाह ने फरमाया, फरिश्तों का ईमान अजीब होने में क्या बात है? वो तो हर वक्त खुदा की रहमत के साए में रहते हैं, अनवार व तजल्लियात की बरसात उन पे होती है, रुकू व सुजूद में होते हैं। अगर वो ईमान न लाए तो फिर कौन लाएगा? उनका ईमान अजीब होने में कौन सी बात है? तो फिर सहाबा ने कहा कि या रसूल अल्लाह, फिर नबियों का ईमान अजीब तर है। क्या फरमाया? फिर नबियों का ईमान अजीब तर है। रसूल अल्लाह ने फरमाया, नबियों का ईमान अजीब होने में कौन सी बड़ी बात है? उन पर तो वही इलाही नाजिल होती है, वो तो अल्लाह के पैगंबर है, तो उनकी ईमान अजीब होने में कौन सी बात है? तो सहाबा ने फरमाया, या रसूल अल्लाह, फिर हमारा ईमान अजीब तर है। क्या कहा? फिर हमारा ईमान अजीब तर है। रसूल अल्लाह ने फरमाया, तुम्हारा ईमान अजीब होने में कौन सी बात है? तुम तो मुझे देख रहे हो, तुम मेरे मौजिज़ात को अपनी आंखों से देखते हो, मेरे चेहरे को देख रहे हो, मुझे खुद, मैं तुम्हारे सामने मौजूद हूँ, तुम्हारे सामने मैं चांद के 2 टुकड़े कर देता हूँ, डूबा सूरज पलट आता है, दरख्त मेरे सामने सजदा करते हैं, कंकरिया कलमा पढ़ती है, जानवर मेरे सामने आके सजदा रेज हो जाते हैं, तो तुम्हारा ईमान अजीब होने में कौन सी बड़ी बात है? अब सहाबा ने कहा, या रसूल अल्लाह, अब हमारा इल्म जवाब दे गया, अब हमको नहीं मालूम किसका ईमान अजीब है, किसका ईमान अजीब है। कहा, तुम्हारे मोमिन होने में कौन सी बड़ी बात है, तुम तो मुझे देख रहे हो ना। तो सहाबा ने कहा कि या रसूल अल्लाह, फिर वो अजीब तर ईमान किसका है? कहा कि वो जो तुम्हारे हजारों साल बाद आएंगे, वो लोग जो कई सालों बाद पैदा होंगे, जिन्होंने मुझे देखा भी नहीं होगा, बस पढ़ा होगा कि कोई घुंघरियालो जुल्फे वाला था, कोई था कि जिसके सामने सूरज और चांद भी शर्मा जाते थे, बस वो ये पढ़ेंगे और बिन देखे मुझसे मोहब्बत करेंगे, बिन देखे मुझसे इश्क करेंगे, उनका ईमान अजीब तर होगा। जो सदियों बाद आएंगे तो उनका ईमान क्या होगा? अजीब तर होगा। का ये कुल्ली फजीलत नहीं है, जुज़वी फजीलत है। हालांकि सहाबा के मुकाबले में उनकी बराबरी कोई नहीं कर सकता, लेकिन ये जुज़वी फजीलत अल्लाह जो है वो बताई गई कि रसूल ने फरमाया उनका ईमान अजीब है। का रसूल से मोहब्बत, तो जो कुछ करना है वो इसलिए करो कि रसूल अल्लाह खुश हो जाए, क्योंकि रसूल खुश होते हैं तो खुदा खुश होता है। ईमान देने वाले ही मुस्तफ़ा है, क्योंकि ईमान है ही मुस्तफ़ा पे, क्योंकि तुमने खुदा को देखा ही नहीं, तुमको पता ही नहीं खुदा है या नहीं है। तुम्हें बताया किसने? मुस्तफ़ा ने कि खुदा है। तो नबी की उस कहने पे तुम, यानी नबी ही पे तो ईमान है, नबी ने बताया है तभी तो तुम ईमान लाए हो, तुमने थोड़ी ना खुदा को देखा है। तो नबी ही पर ईमान है। तो हुजूर खुश हो जाए
اور ہمیں کہہ دے کہ جا تو سلامت رہے، بس یہی بات کافی ہے. تو یہ مجالس سے یہ سب کچھ ہم کرتے ہیں تو صرف مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور مصطفیٰ کے حبیب اور ان کے محبوب ان کے شہزادے ہیں حسن اور حسین، ان کی شہزادی ہے فاطمہ الزہرا، ان کے بھائی ہے علی مرتضیٰ. حضور کہتے ان کی محبت میں، اہل بیت کی محبت میں میری رضا کو تلاش کرو، ان کی محبت میں میری محبت کو تلاش کرو. اگر یہ راضی ہو جائے تو میں بھی راضی ہو جاتا ہوں، اور میں راضی ہو جاؤں تو خدا بھی راضی ہو جاتا ہے. تو یہ مختصر سی مجلس رسول خدا پہ تھی. انشاءاللہ تعالیٰ بھی ذکر کی مجلس ہوں گی. اور جو حضرت وضو سے ہے تو بہت اچھی بات ہے، اگر کسی کا وضو نہیں ہے تو کر کے آ جائے. انشاءاللہ ذکر ہوں گا. تو وضو سے ہے نا؟ ٹھیک ہے، وضو کر کے آنے تو جو نہیں ہے وضو سے. نہیں سلیمان چاچا وضو نہیں، لائٹس بند رہی کیسے دکھیں گے؟ سب بعد میں بند کرنے ذکر کے بعد سلام نہیں پڑھو گے؟ اندھیرا ویسے بھی کریں گے تو لائٹ بند کریں گے تو بند کر ادھر والوں کو اندر لو، وہ دیے ابھی کروائی آدھے لوگ باہر کوئی ٹوک کرا دیں گے. اب کیا کریں گے؟ ادھر ادھر اندر جاؤ بولنا، ادھر سے آدھے لوگ اندر جاؤ. فیضان لائٹ بند کرو. رکو 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 رکو، یہ چالو ہے. نہیں بند کریں گے نا. نہیں بول رہے یہ چالو نہیں یہ بولتے. اندر جاؤ نا، اندر جاؤ نا. بہت سارے جگہ بھاگ جان بیٹھ جائیں گے. تھوڑا آگے چلو نا. ادھر جا اگر وہ تم نے کہا لگا ہے تو وہاں پہ بیٹھ جا. تھوڑا آگے سرکا کے تھوڑا آگے لے. یہ 2 منٹ آتے ہیں. 2 منٹ وہ بھی بند کرنا. اچھا ویٹ ہوتی اچھا آتی ہے تم یہاں سے بھی کتنا گیا اندر آ جاؤ. ایسا اٹھتے ہیں بھائی تم ایسا ایسا وہ سائڈ فیس کر کے پیٹی پہ رکھ، پیٹی پہ نہیں اندر جائیں گا بسی بھائی ویسے بھی اندر آ کیا دکھنے والا ہے. ہو جائیں گے. بلال کو ادھر آؤں گا نا. ہاں چلتا پہلے خیال رکھ، ڈلنا نہیں ہونا کوئی. ارے حسمت بول رہا ہے پہلے رکھ ہوتا ہے. ارے بلال بیٹھے جلدی سے پانی لائٹ بھی بند. ہاں بند کریں گے. سائلنٹ کرو رے.